ایک سوداگر بڑا مالدار تھا جو جانوروں کی بولی سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایک دن اس نے مویشی خانے سے گدھا اور بیل کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ بیل نے گدھے سے کہا، تم خوش قسمت ہو اور میں سارا دن ہل چلاتا ہوں اور تم مزے میں رہتے ہو۔ گدھے نے کہا کہ میرا کہنا مانو تو تم بھی آرام پاؤ گے۔ کل کام کے وقت بیمار بن جانا تو مالک تم سے کام نہ لے گا۔ بیل نے خوش ہو کر تجویز پر پورا عمل کرنے کا یقین دلایا۔ سوداگر نے ان دونوں کی باتیں سن لی اور چپ رہا۔ دوسرے دن ملازم نے بیل کے بیمار ہونے کی اطلاع دی۔ سوداگر مسکرایا اور کہا کہ آج گدھے کو لے جاؤ۔ نوکر گدھے کو لے گیا اور شام تک کام لیا۔ رات کو جب گدھا آیا تو بیل نے بہت شکریہ ادا کیا کہ تمہاری تجویز خوب رہی اور مجھے آرام کرنے کا موقع مل گیا۔ گدھا دن بھر کی مشقت سے چور چور تھا۔ اس وقت تو چپ رہا، لیکن جی میں سوچتا رہا کہ اچھی نصیحت کی، خود بلا میں پھنس گیا۔ وزیر نے یہ قصہ بیان کر کے کہا کہ بیٹی، تو بھی اس ناسہی گدھے کی طرح اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ میں نے جو ارادہ کر لیا ہے اسے ضرور پورا کروں گی۔ وزیر نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تم سے وہی سلوک کرنا پڑے جو سوداگر کو اپنی بیوی سے کرنا پڑا تھا۔ شہزادی نے کہا کہ آپ مجھے سوداگر کی حقیقت سنائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اس گدھے کا کیا حال ہوا۔ وزیر نے کہا کہ اگلے روز صبح سویرے سوداگر پھر مویشی خانے پہنچا تاکہ گدھا اور بیل کا معاملہ دیکھے۔ آج اتفاقاً اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ اس وقت گدھا بیل سے پوچھ رہا تھا کہ آج کا کیا ارادہ ہے۔ بیل نے کہا آج بھی میں بیمار رہوں گا، تو گدھے نے کہا کہ نہیں، ایسا غضب نہ کرنا۔ مالک کہہ رہا تھا کہ اگر بیل تندرست نہ ہوا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج اچھی طرح اپنے کام پر چلے جاؤ ورنہ جان کا خطرہ ہے۔ سوداگر یہ سن کر ہنس پڑا۔ اس کی بیوی نے متعجب ہو کر پوچھا، آپ کیوں ہنسے؟ سوداگر نے جواب دیا کہ بیل اور گدھے کی باتوں پر ہنسی آ گئی۔ تو بیوی نے دریافت کیا، ان میں کیا گفتگو ہوئی؟ سوداگر کہنے لگا، یہ ایک راز ہے، اگر میں ظاہر کر دوں تو اس میں میری جان کو خطرہ ہے۔ بیوی نے اصرار کیا اور کہنے لگی کہ تم بہانے کرتے ہو، اگر صحیح بات نہ بتاؤ گے تو میں اپنے آپ کو قتل کر دوں گی۔ سوداگر نے ہر چند اس کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور ساتھ ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ سوداگر دیکھ کر پریشان ہوا کہ اگر اس کو بتاتا ہوں تو میری زندگی پہ حرف آتا ہے، نہیں بتاتا تو جان کھوتی ہے۔ اس فکر میں کھڑا تھا کہ کتے نے مرغ سے کہا، تو آج بھی اپنی مرغیوں سے بدمستی کر رہا ہے؟ مرغ بولا کہ کیوں، آج کیا بات ہے؟ کتے نے کہا کہ آج ہماری ملکہ مالک سے ایسا راز دریافت کرنے پر اصرار کر رہی ہے کہ اگر بتا دیا جائے تو مالک کی خیر نہیں، اگر مالک نہیں بتاتا تو ملکہ جان دینے کو تیار ہے۔ مرغ بولا کہ مالک بے وقوف ہے جو ایک بیوی کو قابو نہیں رکھ سکتا۔ مجھے دیکھو، 50 مرغیوں کو سنبھال رکھا ہے، اگر میری مرضی کے خلاف ذرا بھی کام کریں تو مار مار کر سیدھا کر دوں۔ مالک جس قدر سستی کریں گے عورت اتنا ہی سر پر چڑھے گی۔ یہ سن کر مالک نے ہنٹر اٹھایا اور بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ عورت ڈر گئی اور سوداگر کے قدموں میں گر کر معافی مانگی کہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات میں نہیں کروں گی۔ یہ حقائق بیان کر کے وزیر نے کہا کہ بیٹی، اگر تو اپنی ضد نہیں چھوڑے گی تو مجھے تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا پڑے گا۔ شہزادی نے کہا کہ میری درخواست منظور کر لیجئے، مجھے یقین ہے کہ میں اپنی ہزاروں بہنوں کی جان بچا لوں گی۔ اگر اس کار ثواب میں میری جان بھی چلی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مجبوراً وزیر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضور، آئندہ شب میری لڑکی حضور کی دلہن بنے گی۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا کہ تمہیں میرا دستور معلوم ہے، کیا تم یہ امید کرتے ہو کہ اس معاملے میں تمہاری بیٹی سے رعایت کروں گا؟ یہ سمجھ لو میرا عہد ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے توڑ دوں۔ وزیر نے کہا کہ حضور کو اختیار ہے۔ وزیر گھر واپس آیا اور بیٹی کو کل ماجرا سنا دیا۔ وہ بولی کہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کو بلایا اور سمجھایا کہ آج میں اس ارادے سے جا رہی ہوں، کسی بہانے سے تمہیں بھی بلاؤں گی۔
जब थोड़ी रात बाकी रहे तो तुम कहानी सुनाने पर इसरार करना। उस वक्त मैं कोई कहानी शुरू कर दूंगी। उम्मीद है कि इस तरह मेरी और मेरे साथ दूसरी बहुत सी लड़कियों की जान बच जाएगी। हस्बे वादा बादशाह ने शहजादी से निकाह कर लिया। रात को जब बादशाह ने वजीर की बेटी को देखा तो उसकी खूबसूरती पर बहुत प्यार आया, लेकिन वजीर की बेटी ने बादशाह को मौका नहीं दिया कि वो अपनी तश्ना आरज़ू की प्यास बुझाए, बल्कि बेख्तियार होकर रोने लगी। बादशाह ने हाल दरियाफ्त किया तो वो रोक कर कहने लगी कि ये तो मैं जानती हूँ कि मुझे आप सुबह कत्ल करा देंगे, इसलिए चाहती हूँ कि अपनी छोटी बहन को अपने पास बुला लूं और जी भर के देख लूं। बादशाह चूंकि उसको दिल से चाहने लगा था, ये सुनकर खामोश हो गया और वजीर की बेटी को बुलाने की इजाज़त दे दी। वजीर की बड़ी बेटी ने अपनी तजवीज़ के मुताबिक बहन को बुलाया और अपने ही कमरे में उसको भी लिटा दिया। बादशाह चूंकि वजीर की बेटी से मोहब्बत करने लगा था, इसलिए परेशान खड़ा था कि उसे अपने अहद के मुताबिक सुबह उसको कत्ल करना पड़ेगा। आधी रात गुजरने पर वजीर की छोटी बेटी ने कहा कि बहन, खुदा जाने सुबह को क्या हो, आप आखिरी कहानी सुना दीजिए, परेशानी में नींद नहीं आती। शहजादी बोली कि शहंशाह इजाजत देंगे तो मैं आपको कोई किस्सा सुनाऊंगी। बादशाह भी कहानियों का बहुत शौकीन था, इजाजत दे दी। वजीर के बेटी ने कहानी सुनाना शुरू कर दी। पहले जमाने में एक नौजवान सुदागर था जो बड़ा दौलतमंद था। एक मर्तबा वो किसी काम के लिए सफर कर रहा था। रास्ते में एक सायादार दरख्त देखकर जरा सस्ताने को बैठ गया और खाना खाने लगा। अभी खाने से फारिग नहीं हुआ था कि हैबतनाक शक्ल का जिन हाथ में तलवार लिए हुए सख्त गुस्सो गजब की हालत में नमूदार हुआ और कहने लगा कि तूने जो खजूर की गुटकियां फेंकी हैं, उनमें से एक गुटकी मेरे लड़के को लग गई है, जिससे वो मर गया। अब मैं तुझे इस इंतकाम में कत्ल कर दूंगा। सौदागर बहुत घबरा गया, जिनसे कहने लगा कि आप मुझे 1 साल की मोहलत दीजिए ताकि मैं अपनी जायदाद और दौलत का इंतजाम कर लूं और कर्ज ख्वाहों का कर्ज अदा कर दूं। साल गुजरने के बाद इस जगह हाजिर हो जाऊंगा, फिर आपको इख्तियार है, जो चाहे सजा दीजिएगा। जिन ने ये बात मंजूर कर ली। सौदागर अपने वतन को वापस लौट आया और हस्बे हिसाब सब बेबाक किया और बीवी बच्चों को समझाया। आखिर साल पूरा होने पर सबको रोता छोड़कर हस्बे वादा उस दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। अभी उसको आए हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक बूढ़ा शख्स एक हिरनी के गले में रस्सी डालने सामने आया था और कहा कि मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं और इस दशतनाक जंगल में तन्हा बैठे क्या कर रहे हैं। सौदागर ने अपनी बीती सुनाई। बूढ़ा कहने लगा कि जब तक तुम्हारा मामले का अंजाम ना देख लूं, मैं आगे नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद एक और शख्स 2 कुत्तों की जंजीरें पकड़े हुए आया और हाल दरियाफ्त करने लगा। जब उसने ये किस्सा सुना तो वो भी ठहर गया और उसके बाद एक और आदमी एक खच्चर को लेकर साथ आया था और वो भी उन लोगों को देखकर वहीं रुक गया। उन सब ने अभी अच्छी तरह गुफ्तगू भी नहीं की थी कि सामने से गिरदों का बार बुलंद हुआ और वही हैबतनाक जिन हाथ में तलवार लिए हुए सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि आज तुम्हारी मोहलत खत्म होगी, अब मैं तुमको कत्ल कर दूंगा। गरीब सौदागर रोने लगा। जिन ने कत्ल का इरादा किया तो हिरनी वाला बूढ़ा आगे बढ़ा और जिन के सामने दस्त बदस्ता खड़ा होकर कहने लगा कि ऐ जिन्नों के बादशाह, मेरी और इस हिरनी की अजीबो गरीब कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ तो क्या इस सौदागर का 1/3 गुनाह माफ कर देंगे। जिन ने कुछ देर सोचने के बाद मंजूर कर लिया। हिरनी वाले बुजुर्ग ने अपनी दास्तान इस तरह बयान करना शुरू की। ऐ जिन्नों के बादशाह, दरअसल ये हिरनी मेरे चचा की लड़की और मेरी बीवी है। अब से 30-40 साल पहले इससे मेरी शादी हुई थी। काफी मुद्दत गुजर जाने के बाद इससे कोई औलाद ना हुई। आखिर मैंने एक लोंडी खरीदी जिसके बदन से एक लड़का हुआ। 15 साल तक हम सब ऐशो आराम से रहते रहे। इत्तेफाकन उस जमाने में मुझे एक सफर पर जाना पड़ा। मैंने लड़के और लोंडी को अपनी बीवी के सपुर्द किया और खुद सफर पर चला गया। लेकिन उस बदबख्त ने मेरे जाने के बाद शहर से बांदी को गाय और लड़की को बछड़ा बनाकर गवालों के हाथ फरोख्त कर दिया।
जब मैं वापस आया और उन दोनों के मुतालिक दरियाफ्त किया तो ये कहने लगी कि बांदी का तो इंतकाल हो गया है और बच्चा मालूम नहीं कहाँ भाग गया। मैंने हर चंद तलाश किया लेकिन कोई पता ना मिला। ये हाल देखकर मुझे बेहद सदमा हुआ, लेकिन सब्र के सिवा चारा ही क्या था। इसी असना में ईद कुर्बान आ गई और मैंने एक उम्दा गाय कुर्बानी के लिए खरीदी। उसने इत्तेफाक से वो वही गाय थी जो मेरी बीवी ने जादू के असर से बनाई थी। जिस वक्त मैं ज़बा करने लगा तो गाय की आंखों में आंसू आ गए और मुझे उस पर रहम आ गया और खादिमों से कहा कि इसे छोड़ दो और दूसरा जानवर ले आओ। लेकिन मेरी बीवी ने, जो दरअसल उसको जानती थी, मुझ पर जोर दिया कि अच्छी मोटी ताज़ी गाय है, इसको ज़बा करो। चुनाचे मैंने उसको नौकर के हाथों से ज़बा करवा दिया, लेकिन जिस वक्त कसाब ने उसको साफ किया तो गाय गोश्त बिल्कुल न निकला, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ लेकिन खामोश रहा और दूसरा जानवर मंगवाया। अब की मर्तबा एक बछड़ा लाया गया। मैं जब उसके करीब गया तो उसने अपना मुंह मेरे पैरों पर रख दिया और रहम तलब नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने उसको छोड़ दिया और दूसरा बैल मंगवा कर ज़बा कर दिया। गो मेरी उस जालिम बीवी ने उसको ज़बा करने पर जोर दिया, लेकिन मैं न माना। चंद रोज बाद एक घुसी मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरी लड़की सेहत जानती है। जब मैं आपका बछड़ा जो आपने छोड़ दिया था वो अपने घर ले गया तो वो कहने लगी ये दरअसल जानवर नहीं बल्कि फलां सौदागर का लड़का है और उसकी बीवी ने इसको शहर के जोर से बछड़ा बना दिया है और इसकी माँ भी गाय बनाई गई थी जो ईद के रोज ज़बा कर दी गई है। ये हाल सुनकर मेरा दिल बैठ गया और इतना सख्त सदमा हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता। खैर, मैं उस वक्त पड़ोसी के घर आया और उस लड़की से कहने लगा, बेटी, अगर तुम किसी तरह उसे दोबारा इंसान बना दो तो मैं तुम्हें उतनी दौलत दूंगा कि जिंदगी भर किसी मेहनत की जरूरत ना रहेगी। लड़की ने कहा कि मैं किसी दौलत की तालिब नहीं, लेकिन दो शर्तें हैं। एक ये कि जब मैं आपके लड़के को इंसान बना दूं तो मेरी शादी उसके साथ मंजूर कर लीजिए। दूसरी ये कि जिस औरत ने इसको बछड़ा बनाया उसको सजा देने की इजाजत दीजिए। मैंने उसकी दोनों शर्तें मंजूर कर ली। लड़की उठी और एक बर्तन में पानी लिया, फिर उस पर कुछ पड़ा और उस बछड़े पर छिड़का। फौरन ही बछड़ा इंसानी शक्ल में आ गया। मैंने अपने लड़के को सीने से लगा लिया और उसी वक्त उस लड़की की शादी उससे कर दी। बाद में उस लड़की ने मेरी बीवी को फौरन अपने शहर से हिरनी बना दिया। चुनांचे ये वही हिरनी है जो इस वक्त मेरे साथ है। इत्तेफाकन आज मैं इधर से गुजर रहा था कि इस सौदागर को यहाँ तन्हा देखकर इसके पास चला आया और इसके हालात सुनकर इसका अंजाम देखने को ठहर गया। आपने मेरी दर्द भरी दास्तान सुनी और उम्मीद है आप हस्बे वादा इस सौदागर का तिहाई कसूर मुआफ फरमाएंगे। जिन ने कहा, वाकई तुम्हारी दास्तान ताज्जुब खेज है और मैं इस सौदागर का तिहाई कसूर माफ करता हूँ। उस वक्त दूसरा शख्स जिसके साथ दो कुत्ते थे आगे बढ़ा और कहने लगा, ऐ शाह जिन, मेरी कहानी इससे भी हैरतनाक है। अगर आप इस सौदागर का तिहाई कसूर माफ करने का वादा करें तो मैं अपनी कहानी अर्ज करूं। जिन ने कहा, अगर वाकई किस्सा अजीब हुआ तो मैं इसका एक तिहाई कसूर माफ कर दूंगा। चुनांचे दूसरा शख्स अपना किस्सा बयान करने लगा। दरअसल ये दोनों कुत्ते मेरे हकीकी भाई हैं। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो हम तीनों भाइयों को 5000 दिनार विरासत से मिले। मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन ये दोनों भाई रुपया लेकर किसी दूसरी जगह पे चले गए थे। तकरीबन 1 साल के बाद मेरा बड़ा भाई इंतहाई मुफलसी और तबाही से भीख मांगता हुआ मेरी दुकान पर आया। मैंने पहचान कर इसको निहायत अदब से बिठाया और इसकी दास्ताने मुसीबत सुनी। फिर इसे 1000 दिनार देकर दोबारा काम शुरू करा दिया। इसी असना में मेरा दूसरा भाई भी परेशान हाल मेरे पास आ पहुंचा और जहां तक मुमकिन हो सकता था मैंने उसकी भी दिलजोई की और उसको भी 1000 दिनार देकर तिजारत शुरू करवा दी। कुछ दिनों के बाद इन दोनों भाइयों ने मुझसे कहा कि बाहर माल लेकर चलते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा नफे की उम्मीद है। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन दोनों ने इतना इसरार किया कि मुझे मजबूरन तैयार होना पड़ा। लेकिन माल की खरीद का वक्त आया तो मालूम हुआ दोनों भाई मेरा दिया हुआ सरमाया ही बर्बाद कर चुके हैं। खैर, मेरे पास उस वक्त 6000 दिनार मौजूद थे। 3000 का माल तिजारत खरीद हुआ और हम तीनों भाइयों सफर पर रवाना हो गए।
1 माह के सफर के बाद एक शहर में पहुंचकर हमने अपना माल माकूल मुनाफे पर फरोख्त किया और वहां से दूसरा माल खरीद कर वापिस चलने के लिए समंदर के किनारे पे आ गए। लेकिन इससे पहले कि जहाज पर सवार होते, एक बहुत ही हसीन लड़की मेरे पास आई और मेरे हाथ को बोसा देकर कहने लगी कि मैं बेयारो मददगार हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं? मुझे उस पर रहम आया और मैंने उससे निकाह कर लिया और अपने साथ जहाज पर सवार कर लिया। मेरी बीवी बेहद फर्मा बरदार और बड़ी नेक खसलत थी। मुझे उससे मोहब्बत होगी, मगर मेरे ये दोनों भाई ना जाने क्यों हमसे हसद करने लगे। चुनाचे एक दिन मौका पाकर इन दोनों ने मुझे और मेरी बीवी को समंदर में गिरा दिया, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे बचा लिया और कहने लगी, तुम्हें देखकर मुझे ख्याल आया कि तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहिए कि तुम गरीबों और मुसीबत ज़दों का भी ख्याल रखते हो कि नहीं। चुनाचा मैं एक परेशान हाल लड़की की शक्ल में तुम्हारे पास आई। चूंकि तुमने उस वक्त मेरे साथ बहुत शरीफाना सलूक किया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ इनाम भी देना चाहती हूँ। ये मेरी खुशी है, लेकिन तुम पर तुम्हारे भाइयों ने जुल्म किया है, लिहाजा उसकी सजा भी उनको जरूर दूंगी। मैंने कहा, बेशक उनका कसूर तो बड़ा संगीन है, लेकिन आखिर ये मेरे भाई हैं। इस वास्ते से मैं चाहता हूँ कि तुम उनको सख्त सजा ना दो, बल्कि तंबीहा करो कि आइंदा ऐसी हरकत ना करें। तो परी ने ये बात मान ली। उसके बाद उसने जरा सी देर में मुझे मेरे मकान में पहुंचा दिया और खुद गायब होगी। शाम को जब मैं घर आया तो देखा कि घर में 2 कुत्ते जंजीर से बंधे हुए बैठे थे और मुझे उनको देखकर ताज्जुब हुआ। ये कुत्ते मेरे कदमों में लूटने लगे। थोड़ी देर में वो परी आई और कहने लगी कि ये कुत्ते तुम्हारे वही भाई हैं जिन्होंने तुमसे और मुझसे बदसलूकी की थी, और अब ये 10 साल तक कुत्ते के कालिब में रहेंगे। उस दिन से हर वक्त इनको अपने साथ रखता हूँ, और अब देखिए कि कब 10 साल की मोहलत पूरी होती है और ये इंसानी कालिब में आते हैं। मैं भी इधर से गुजर रहा था जहाँ ये हिरनी वाले बुजुर्ग और ये नौजवान बैठे हैं। इनका हाल सुनकर अनजान मालूम करने को ठहर गया। उम्मीद है कि मेरा किस्सा आपको पसंद आया होगा और आप हस्बे वादा इस सौदागर का 1/3 कसूर मुआफ कर देंगे। चुनांचे उस जिन ने उसका 1/3 कसूर मुआफ कर दिया। अब तीसरा शख्स उठा और कहने लगा कि आपने दोनों का किस्सा सुनकर 2/3 कसूर माफ कर दिया। अब मेरा किस्सा भी सुन लीजिए। अगर आप बाकी 1/3 कसूर भी माफ करने का वादा फरमाए तो मैं भी अपनी सरगशत सुनाऊं। जिन ने मंजूर कर लिया। चुनांचे खच्चर वाले मुसाफिर ने अपनी कहानी इस तरह शुरू की। ये जो खच्चर आप देख रहे हैं, ये मेरी बीवी है। किस्सा यूं है कि एक दफा मैं सफर पर गया और तकरीबन 1 बरस के बाद वापस आया। आधी रात के करीब मैं घर पहुंचा। जब मैं अंदर गया तो देखा कि मेरी ये बीवी अपने गुलाम के साथ हम आगोश है। इत्तेफाकन से ये उस वक्त जाग रही थी। मुझे देखते ही उठी और एक बर्तन में पानी लेकर उस पर कुछ पड़ा और वो पानी मुझ पर फेंक दिया। मैं उसी वक्त कुत्ते की शक्ल में तब्दील हो गया और फिर इसने मुझे मारकर घर से निकाल दिया और फिर मैं घर से निकलकर दर बदर फिरता रहा। शाम को एक किताब की दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता। वो कुछ हड्डियां और छिछड़े मेरे आगे डाल देता और उन्हीं को खाकर मैं अपने पेट की आग बुझा लेता। एक रोज कसाब हस्बे मामूल दुकान बंद करके घर चला गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे रवाना हो गया। जब हम घर के अंदर पहुंचे तो कसाब की लड़की ने मुझे देखकर पर्दा कर लिया और बाप से कहने लगी कि आप नामहरम को क्यों साथ ला रहे हैं। कसाब ने इधर उधर देखकर कहा कि यहाँ तो कोई दूसरा आदमी नहीं है। लड़की ने कहा, ये कुत्ता जो आपके साथ आया है दरअसल ये इंसान है। इसको इसकी बीवी ने जादू से जानवर बना दिया है। कसाब को मेरा हाल सुनकर रहम आया और लड़की से कहने लगा कि क्या तू इसको इंसानी शक्ल में ला सकती है। लड़की ने कहा हाँ। कसाब कहने लगा तो फिर इसको इंसान बना दे, ये गरीब बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। चुनांचे उस लड़की ने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका। मैं अपनी असली हालत में आ गया। मैंने उस लड़की से 10 बस्ता अर्ज किया कि ये तो आपका बड़ा एहसान है जो उम्र भर ना मैं भूलूंगा, लेकिन इतना करम और मुझ पर कर दीजिए। मुझे कोई तदबीर बताएं कि मैं अपनी जालिम बीवी को भी सजा दे सकूं। लड़की ने कहा, अच्छी बात है। फिर उसने कुछ पानी दम किया हुआ मुझे दिया और कहा कि जब तुम्हारी बीवी सो रही हो तो ये पानी उस पर डाल दो। जिस जानवर के बनने का हुक्म दोगे वही जानवर बन जाएगी। मैंने पानी लेकर अपने घर की तरफ गया। मौका पाकर अपनी बीवी को हुक्म दिया कि खच्चरी बन जा।
ये उसी वक्त खचरी बन गई और इस वक्त से मैं इसे अपने साथ रखता हूँ। जिनको ये कहानी बहुत पसंद आई और उसने सौदागर का बकिया तिहाई कसूर भी माफ कर दिया। बादशाह ये हकायत सुनने के बाद वजीर की बेटी से बड़ा मुतासिर हुआ और उसने वजीर की बेटी से कहा कि मुझे एक और हकायत सुनाई जाए। वजीर की छोटी बेटी ने भी अपनी बड़ी बहन से जिद की कि मुझे एक और हकायत सुनाए। वजीर की बड़ी बेटी ने एक और हकायत सुनाना शुरू की। किसी जमाने में एक माहिरगीर था जो कि बूढ़ा, कमजोर और गरीब भी था, इसलिए बड़ी तंगी से जिंदगी बसर होती। उसका रोजाना ये मामूल था कि सुबह सवेरे दरिया पार जाता और 4 मर्तबा जाल डालता। जो कुछ हाथ आता उसको लेकर खुदा का शुक्र अदा करता। एक दिन हस्बे मामूल उसने जाल डाला। उसे खींचता तो बहुत भारी था। दिल में ख्याल आया कि आज बहुत सी मछलियां आएंगी। उसने खुशी से जाल को निकाला, देखा तो उसमें एक मुर्दा गधे की लाश थी। ये देखकर बहुत गमगीन हुआ। फिर जाल डाला तो कीचड़ मट्टी आई। तीसरी बार जाल डाला तो खाली निकला। ये हाल देखकर माहीगीर बहुत परेशान हुआ और फिर चौथी मर्तबा उसने जाल डालकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे खुदा, आप मेरे हाल से वाकिफ हैं कि मैं 4 बार जाल डाल चुका हूँ और आज 3 बार जाल डाल चुका हूँ, लेकिन मुझे मेरा रिज्क नहीं मिला। अब आखिरी बार आपका नाम लेकर जाल डाल रहा हूँ, अपना रहम फरमाइए। इस मर्तबा जाल भारी मालूम हुआ। खींचकर बाहर निकाला तो उसमें मछलियों की बजाय एक सरमहद पीतल का घड़ा था। माहीगीर ने ख्याल किया कि शायद इसमें माल हो। उसने घड़ा खोला लेकिन वो भी खाली था। मायूस होकर जाल डाला और घर चलने को तैयार हो गया। घड़े पर नजर पड़ी तो क्या देखता है कि उसमें से धुआं निकल रहा है। माहीगीर रुक गया। धुआं भरता गया और फिर एक बड़े जिन की शक्ल बन गया और वो जिन कहने लगा, क्या बादशाह सुलेमान, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा कभी सरकशी नहीं करूंगा। माहीगीर पहले तो डरा, लेकिन जब माफी के अल्फाज सुने तो उसको तसल्ली होगी। कहने लगा कि ए जिन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मुद्दत हुई वफात पा चुके हैं, तू कौन है, क्या बात है। ये सुनकर जिन गुस्से से माहीगीर की तरफ देखने लगा और कहा, क्या गुस्ताख, तमीज से गुफ्तगू कर और तैयार हो जाए, मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। माहीगीर बोला, भाई, मैंने तेरा क्या कसूर किया है कि सदियों से तुम कैद थे और आज मेरी वजह से आजाद हुए और मुझे ही कत्ल करते हो। जिन ने कहा, बेशक तेरा एहसान है, लेकिन मैं अहद से मजबूर हूँ, क्योंकि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नाराज होकर मुझे घड़े में कैद करके दरिया में डाल दिया तो मैंने अपने दिल में अहद किया कि अगर मुझे कोई पहले 100 साल में रिहा कराएगा तो उसको खजाने से माला माल कर दूंगा, लेकिन किसी ने मुझे ना रिहा किया। फिर मैंने ऐद किया कि अगर मुझे कोई दूसरे 100 साल में रिहा करेगा तो मैं उसको जमीन के दफीने बता दूंगा, लेकिन कोई ना आया जो उस मुसीबत से निजात देता। और तीसरी बार मैंने कसम खाई कि तीसरे 100 साल में अगर कोई मुझे निकालेगा तो बादशाह बना दूंगा, लेकिन इस मर्तबा भी मुझे किसी ने ना छड़वाया। आखिर तंग आकर मैंने कसम खाई कि अब अगर कोई मुझे इस घर से निकालेगा तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। चाचा, अब तुमने मुझे निकाला है, अब मैं अहद से मजबूर हूँ और तुझको जरूर मारूंगा। सिर्फ ये हो सकता है कि तू अपनी मौत के लिए जो तरीका तजवीज करेगा उसी तरह हलाक करूंगा। माहीगीर दिल में बहुत हैरासान हुआ, लेकिन सुकून बरकरार रखा और कहने लगा कि तुमने जो इतने तवील अहद व पैमान सुनाए हैं, मुमकिन है ये सही हो, लेकिन मुझे ये शुबा है कि तुम इस गड्ढे में नहीं थे बल्कि कहीं दूर से आए हो और अब मुझे ख्वामोख्वाह कत्ल करना चाहते हो। ये सब हीले बहाने हैं। जिन ने कहा, तुझे यकीन नहीं आता, मुझको तो झूठा समझता है। माहीगीर ने कहा, आंखों से देखे बगैर कैसे मान लूं कि इतना बड़ा पहाड़ सा जिन एक छोटे से गड्ढे में बंद था। जिन ने कहा, अच्छा ले देख। जिन फिर धुआं बनकर घड़े में भरना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता सारा धुआं घड़े में समा गया। माहीगीर ने मौके को गनीमत जाना और घड़े का मुंह बंद करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फिर मोहर लगा दी और घड़ा उठाकर दरिया में फेंकने लगा कि उस जिन ने कहा, ऐ भाई, ये तू क्या कर रहा है। माहीगीर ने कहा, तुझे दरिया में डालता हूँ
ता कयामत तक कैद रहे। जिन मिन्नतें करने लगा कि मुझ पर रहम कर, मैं तुझसे मजाक कर रहा था, मैं अपने मोहसिन को क्यों कर हलाक करता। माहीगीर ने हंस कर कहा, मैं तुम्हारे फरेब में नहीं आऊंगा। मुझे हकीम और यूनान के वजीर का किस्सा याद है। जिन ने कहा, वो क्या बात है? सुनकर माहीगीर ने कहा कि मैं तुझे बताता हूँ, गौर से सुन। मुल्क यूनान में एक बादशाह था। एक बादशाह को बर्स का मर्ज था। बहुत इलाज मुआवजे किए गए थे, लेकिन कुछ अफाका ना हुआ। उस वक़्त एक हकीम का यूनान में बहुत जोर था। जब उसको ये हाल मालूम हुआ तो उसने अर्ज किया कि मैं बगैर दवाई खिलाए और कुछ लगाए आपका इलाज कर सकता हूँ। बादशाह बहुत खुश हुआ और हकीम से वादा किया कि अगर तुम्हारे इलाज से मैं अच्छा हो गया तो तुम्हें माला माल कर दूंगा। हकीम ने कुछ मोहलत की इजाजत ली और अपनी कयामगाह पर आकर एक खाली गेंद बनवाई और उसमें चंद दवाइयां भरकर बंद कर लिया और फिर उसमें छोटे छोटे सुराख कर लिए और बादशाह की खिदमत में लेकर पेश की और कहा कि आप आज से इस कदर खेलें कि तमाम जिस्म पर पसीना आ जाए। उसके बाद हमाम में नहाए। बादशाह ने तबीब की हिदायत पर अमल किया और गुस्ल करने के बाद आराम से सो गया। फिर सुबह को बेदार हुआ तो ये देखकर बहुत खुश हुआ कि जिस्म दाग धब्बों से साफ हो गया है। दरबार में हकीम को तलब किया गया और उसको बहुत सा इनाम और मालो दौलत देकर बादशाह ने अपना मसाहिब खास बना लिया। हकीम का ये एजाज देखकर आमरा दरबार हसद करने लगे। एक रोज मौका पाकर एक वजीर ने बादशाह से उस हकीम की बड़ी शिकायत की कि यह हकीम अच्छी नीयत नहीं रखता और आपकी जान के लिए खतरा है। बादशाह ने कहा, तुम गलत कहते हो। अगर उसे मुझसे कोई अदावत होती तो दौराने इलाज वो मुझको हलाक कर सकता था। मुझे इस संदबांत के वजीर का किस्सा याद आया जिसने शहजादी की जान बचाई। उसको गौर से सुन। किस्सा यूं है कि एक संद बाद बादशाह की खुशदामना ने बादशाह की साबका मलका के लड़के पर तोहमत लगाई कि वो कत्ल कर दिया जाए। जब बादशाह ने अपनी खुशदामना के कहने से शहजादे के कत्ल का हुक्म सादर किया तो वजीर ने अर्ज किया कि बादशाह सलामत जान की अमान पाऊं तो अर्ज करना चाहता हूं कि आप पहले पूरी तहकीकात करें कि आपको बाद में इस तरह पशेमान ना होना पड़े जिस तरह एक शख्स को अपना तोता मारकर पशेमानी हुई थी। और वो वाकया यूं है, एक शख्स के पास एक अजीबो गरीब किस्म का तोता था। मालिक की अदम मौजूदगी में जो कुछ पेश था वो सब कुछ मालिक को बता दिया करता था। उसकी बीवी नौजवान और बहुत हसीन थी, लेकिन पारसा ना थी। एक बार वो शख्स सफर पर गया तो उसकी बीवी ने अपने दोस्तों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। जब मालिक वापस आया तो तोते ने उसे सब कुछ जाहिर कर दिया। औरत ने यह समझा कि मेरे हमजाद बांदियों ने शिकायत की है। वो उन पर नाराज हुई, लेकिन वो सब कस्में खाने लगी कि मलका हमारा कोई कसूर नहीं है, ये सब तोते की शरारत है। उसने सब हाल बयान किया है। मलका ने कहा, उसका इंतजाम करती हूँ। चुनाचे उसने एक मुलाजिम को कहा कि तुम पिंजरे पर पानी छिड़कते रहो और दूसरी को कहा कि तुम तमाम रात इस पिंजरे के नीचे चक्की पीसती रहो और तीसरी को हुक्म दिया कि तुम दूसरे उस पार आईने का अक्स डालती रहो और उसका ख्याल रखो कि ये तोता तुम में से किसी को ना देख सके। जब तमाम रात ये सिलसिला जारी रहा तो सुबह के वक्त जब मालिक ने हाल दरियाफ्त किया तो तोता कहने लगा, मैंने आज रात बहुत तकलीफ उठाई है। बारिश हो रही थी, बादल गरजते रहे और बिजली ऐसी चमकती रही कि मेरी आंखें बंद हो जाती थी। मालिक हैरान था कि रात को तो कोई अबर आबूत नहीं थे, ये तोता झूठ बोलता है। बीवी ने भी शिकायत की कि ये शरीर मेरे मुतालिक भी इसी तरह की गलत बयानी करता रहा है। तो जब शख्स ने गुस्से में आकर तोते को मार डाला। चंद रोज बाद उसको असल किस्सा मालूम हुआ तो बहुत पशेमान हुआ। ये बात बयान करके बादशाह ने कहा कि तू भी मुझे इस तरह गलत राह पर डाल रहा है। तो वजीर ने अर्ज किया कि मैं आपका खैरख्वाह दोस्त हूँ, मगर आपने उस पर एतबार किया। आपके लिए भी इस तरह का खतरा है जैसे एक वजीर ने बादशाह ज़ादे को बचाकर अपनी जान दी है। बादशाह ने कहा, अच्छा वो किस्सा सुनाओ कि क्या हुआ। वजीर ने अर्ज किया कि एक शहजादा था, उसको शिकार का बड़ा शौक था। एक रोज शहजादा शिकार को जाने लगा तो बादशाह ने वजीर को साथ भेजा और ताकीद की कि शहजादे को तन्हा ना छोड़े।
اور اچھی طرح حفاظت کرے۔ شکار میں ایک ہرن ملا۔ شہزادے نے اس کا تعاقب کیا لیکن وزیر پیچھے رہ گیا۔ ہرن چوکڑیاں بھرتا ہوا دور نکل گیا۔ شہزادہ مایوس ہو کر لوٹا۔ راستے میں اس کو ایک خوبصورت عورت نظر آئی جو بیٹھی رو رہی تھی۔ شہزادہ اس کے پاس گیا اور اس سے حال دریافت کیا۔ وہ کہنے لگی کہ بادشاہ کی لڑکی ہوں اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئی ہوں۔ میرا گھوڑا بے قابو ہو گیا اور مجھے گرا کر بھاگ گیا۔ شہزادے نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اس جنگل سے نکال کر تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ وہ شہزادے کے گھوڑے پر سوار ہوگی اور جب وہ ایک ویران مقام پر پہنچے تو وہ گھوڑے سے کود پڑی اور آواز دی کہ بچوں جلدی آؤ، میں تمہارے لیے شکار لائی ہوں۔ جواب میں آواز آئی کہ ماں لاؤ، ہم بھوکے ہیں۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ میں شیطانی روح کے جال میں پھنس گیا ہوں، تو اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے گھوڑے کا رخ پھیرا اور اللہ سے دعا کرتا ہوا بھاگا۔ ہر چند عورت آواز دیتی رہی کہ صاحب تم کو کیا وہم ہے اور مجھے یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہو، لیکن شہزادے نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آخر کچھ دیر بعد شہزادہ گھر پر پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے یہ حادثہ باپ سے بیان کیا۔ بادشاہ نے وزیر کی غفلت پر سخت برہم ہوا اور وزیر کو قتل کرا دیا۔ وزیر نے یہ حکایت بیان کر کے عرض کیا کہ شہنشاہ کو ایک نئے آدمی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور ممکن ہے کہ جس طرح اس حکیم نے ایک گیند بنا کر آپ کا مرض رفع کر دیا، کسی دن کوئی پھول سنگا کر آپ کی جان خطرے میں ڈال دے۔ بادشاہ وزیر کے اس فکرے میں آ گیا اور فیصلہ کیا کہ اس حکیم کو قتل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے دربار میں اس حکیم کو طلب کیا اور کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کسی دوسرے کے جاسوس ہو، میری جان لینے آئے ہو، اس لیے میں تمہیں قتل کر دینا چاہتا ہوں۔ حکیم نے دست بستہ عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ کو اختیار ہے، لیکن میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مجھے حضور سے کوئی دشمنی ہوتی تو جب میں حضور کا علاج کر رہا تھا اسی وقت نقصان پہنچا دیتا۔ اہل دربار نے بھی سفارش کی کہ آج تک ہم نے حکیم صاحب کی کوئی حرکت غلط نہیں دیکھی، لیکن وزیر نے ایسی آگ لگائی تھی کہ جو آسانی سے نہیں بجھ پانی تھی۔ بادشاہ نہ مانا۔ آخر کار حکیم کو جب یقین ہو گیا کہ بادشاہ قتل کیے بغیر باز نہیں آئے گا تو پھر وہ عرض کرنے لگا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے جو آخری نظر حقیقت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قتل کے بعد میرے سر کو سامنے رکھ کر اپنے ہاتھ سے اس کو کھولیں اور ورق کے بائیں صفحے پر تینوں سطر احتیاط سے گن کر نکالیں، اور پھر اس کو پڑھ کر جو کچھ سوال آپ میرے سر سے کریں گے وہ اس کا معقول جواب دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت مشتاق ہوا اور حکم دیا کہ جاؤ کتاب لے کر آؤ، اور جو کچھ دیر کے بعد ایک کتاب کھول کر دیکھنے لگا، لیکن کتاب کے ورق کچھ جڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے انگلی کو لب لگا کر ورق الٹنے شروع کیے۔ ابھی چند ہی ورقے الٹے تھے، حکیم کتاب کے ہر ورقے پر زہر لگا لیا تھا جو بادشاہ کے جسم میں اثر کر گیا اور بادشاہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس وقت حکیم نے عرض کیا کہ اگر آپ بلا وجہ میرے قتل کے در پہ نہ ہوتے تو یہ انجام نہ ہوتا۔ ماہی گیر نے یہ قصہ بیان کر کے جن سے کہا کہ اگر تو مجھے بلا وجہ میرے قتل کا ارادہ نہ کرتا تو دوبارہ اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتا۔ تو نے اپنے محسن کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس کا انجام تیرے سامنے ہے۔ اب میں پھر تجھے دریا میں ڈالوں گا اور کوشش کروں گا کہ وسط دریا میں پڑا رہے تاکہ کوئی بندہ خدا غلطی سے تجھے نکال کر مصیبت میں گرفتار نہ ہو۔ جن یہ سن کر گھبرا گیا اور منت سے کہنے لگا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سے دغا نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ ماہی گیر نے کہا کہ تیرا کیا اعتبار کہ ایک بار اس قید سے باہر نکل کر پھر جو چاہے تو کر سکتا ہے، میں اپنے اور دوسروں کے لیے تجھے چھوڑ کر کیوں خطرہ پیدا کروں۔ جن نے پھر خدا کی قسم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سخت قسم اٹھائی اور وعدہ کیا کہ میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ آخر ماہی گیر کو جن کی قسم پر یقین آ ہی گیا اور اس نے گھڑے کا منہ کھول دیا۔ جن باہر آیا اور گھڑے کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر ماہی گیر ڈر گیا۔ جب جن نے یہ حالت دیکھی تو کہنے لگا کہ خوف نہ کر، اب میں تیرے ساتھ کوئی برائی نہیں کروں گا، جلد اٹھ کر میرے ساتھ آ۔ آگے آگے جن اور پیچھے پیچھے ماہی گیر چلنے لگا۔
کچھ دیر بعد پہاڑ پر پہنچے، وہاں ایک خوبصورت تالاب تھا۔ اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر جن نے کہا کہ اس میں ایک بار جال ڈال اور جو مچھلیاں ہاتھ لگے وہ بادشاہ کے حضور پیش کر، وہاں سے تم کو بہت انعام ملے گا اور بہت سے بندہ خدا اور بہت سی دکھی انسان مصیبت سے نجات پائیں گے۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا۔ ماہی گیر نے جال ڈالا تو اس میں 4 رنگ کی مچھلیاں آئیں۔ بادشاہ نے ماہی گیر کو بہت کچھ انعام دیا اور مچھلیاں باورچی خانے میں گئیں۔ جب باورچی نے ان کو تلنے لگا تو مچھلیاں الٹی تو ایک دم سامنے کی دیوار پٹی اور اس میں سے ایک عورت نفیس لباس پہنے ہوئے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھری تھی۔ وہ مچھلیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، تمہیں اپنا عہد یاد ہے؟